Hi friends, welcome to DM classes. Today we will start with measures of central tendency. First, central tendency. The tendency of the data which seems too crowded in the central part is called central tendency. To compare two given groups, our central tendency are measured. Mean, median and mode are the measures of central tendency. Second, mean. First, mean of raw data. The average of a given set of number is called the arithmetic mean or mean of the given numbers. Mean equal to the sum of all observations in the data divided by total number of observations. Second, mean of ungrouped data. If x1, x2, x3 and so on xn are given observations and f1, f2, f3, fn be their frequencies, then their mean is given by x bar equal to summation of fi xi divided by summation of fi. The mean is denoted by x bar and read as x bar, and the symbol summation is called sigma or summation. Third, median. The scores are arranged in ascending or descending order. The number appearing exactly at the middle position in this order is known as median of the observation. If the number of observations is even, then the median is the average of the middle two numbers. First, if the number of observations n is odd, then median equal to n plus 1 divided by 2th term of the observations. Second, if the number of observations n is even, then the average of n by 2th term and n by 2 plus 1th term is the median. Fourth, mode. The score which is repeated maximum number of times in the given data is called the mode of the data. Let us start practice set 7.5. Question number first. Yield of soybean per acre in quintal in Mukun's field for 7 years was 10, 7, 5, 3, 9, 6 and 9. Find the mean of yield per acre. हमें यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिसमें 7 ईयर्स तक सोयाबीन हर साल कितनी उगी है उसका रिकॉर्ड है। तो हमें इन सभी का मीन फाइंड करना है। सॉल्यूशन। तो हम सबसे पहले मीन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मीन इक्वल टू the sum of all observations in the data divided by total number of observations equal to the sum of all observation in the data। यहाँ पर हमें टोटल 7 ईयर्स के नंबर्स दिए हुए हैं तो 10 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 9 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर्स कितने 1 2 3 4 5 6 7। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 7 इक्वल टू। अब हम इन सभी को ऐड करके लिख लेंगे। इन सभी को ऐड करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 49 डिवाइडेड बाय 7। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49 इक्वल टू 7। तो हमारा मीन हो जाएगा देयरफॉर मीन इक्वल टू 7 आंसर। देयरफॉर the mean of yield per acre is 7 quintal. Answer. Question number second. Find the median of the observations. हमें यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, हमें यहाँ पर इनका मीडियन फाइंड करना होगा। सॉल्यूशन। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन नंबर्स को अरेंज करना होगा या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। गिवन डेटा इन
असेंडिंग ऑर्डर। हम सबसे पहले इन डेटास को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ी वैल्यू लेना। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी यहाँ पर हमारे पास 59। उसके बाद है 68, देन उसके बाद 70, 74, 75, अगेन 75 एंड 80। ये नंबर से हमारे पास, तो टोटल कितने नंबर से वो हम लिख लेते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इक्वल टू 7, दैट इज ओड। ये ओड नंबर है तो हमें यहाँ पर ओड नंबर के लिए फॉर्मूला लगाना होगा। ओड नंबर के लिए फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म इक्वल टू n इक्वल टू 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 7 + 1 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 इक्वल टू 4th टर्म। तो 4th टर्म कौन सी हो जाएगी, 1 2 3 4, 74th है। हियर 4th नंबर is at the middle position which is 74. Therefore the median of the data of the given data is 74 answer. Question number 3rd. The marks out of 100 obtained by 7 students in mathematics examination are given below. Find the mode of these marks. यहाँ पर हमें कुछ मार्क्स दिए हुए हैं 7 स्टूडेंट्स के जो कि आउट ऑफ 100 हैं। हमें यहाँ पर जो मार्क्स गिवन है ये मैथमेटिक्स एग्ज़ाम के हैं तो हमें इनका मोड फाइंड करना होगा। तो मोड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो नंबर्स लिखे हैं इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन, गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें यहाँ पर जो गिवन डेटा है उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो नंबर्स हैं 60, 90, उसके बाद है 95, 99, देन उसके बाद है हमारे पास 100 जो कि 3 टाइम्स लिखे हुए हैं 100, 100, 100। अब यहाँ पर देखिए 100 3 टाइम्स लिखा हुआ मतलब 100 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो यहाँ पर मोड का मतलब वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो हमारा मोड हो जाता है। हियर द ऑब्जर्वेशंस repeated maximum number of times। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार 100 लिखा हुआ है मतलब 100 आंसर हो जाएगा इक्वल टू 100। Therefore the mode of the data is 100 answer. Question number 4. The monthly salary in rupees of 30 workers in a factory are given below. हमें यहाँ पर ये जो नंबर्स गिवन है ये 30 वर्कर्स की सैलरी जो कि फैक्ट्री में काम करते हैं। तो हमें यहाँ पर इन नंबर्स का यूज़ करके
फ्रॉम द अबाव डेटा फाइंड द मीन ऑफ मंथली सैलरी, मतलब इनका हमें मीन फाइंड करना होगा। सॉल्यूशन, तो हम सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। अब हमें यहाँ पर देखिए कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जो कि सैलरी है, मंथली सैलरी है वर्कर्स की। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मंथली सैलरी इन रुपीस, जिसे हम डिनोट करेंगे एक्स आई से। अब यहाँ पर ये हमें काउंट करने होंगे कि कौन से नंबर्स कितनी बार है, मतलब यहाँ पर हमें फ्रिक्वेंसी लिखना होगा। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स मीन्स एफ आई, तो एक्स आई इंटू एफ आई, एक्स आई इंटू एफ आई, मंथली सैलरी एक्स आई, मतलब यहाँ पर जो नंबर्स दिए हुए हैं वो नंबर्स हमें यहाँ पर लिखने होंगे। तो 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 गिवन है, तो वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 एंड 9000। हमने यहाँ पे ये नंबर्स लिख लिए। अब हमें यहाँ पे इनकी फ्रिक्वेंसी फाइंड करना है कि 3000 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स है, तो हमने यहाँ पर लिखा 8। अब 4000 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 7। अब 5000 कितने टाइम्स आया हुआ है, 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 5। 6000, 1 2 3 4, इसकी फ्रिक्वेंसी है 4। अब 7000 कितने टाइम्स आया हुआ है, 1 2 3 टाइम्स, तो इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 3। 8000, 1 2 2, तो 8000 की फ्रिक्वेंसी है 2। अब 9000 कितने टाइम्स आया हुआ है, 1 टाइम्स, 9000 की फ्रिक्वेंसी है 1। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना होगा समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू 8 + 7 = 15, 15 + 5 20, 20 + 4 24, 24 + 3 27, 27 + 2 29, 29 + 1 = 30। तो यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू आ गई है 30। अब हमें यहाँ पर लिखना है एफ आई एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई मीन्स एफ आई इंटू एक्स आई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पर लिखना होगा। तो 3 8 जा 24, तो 24,000, 7 4 जा 28, 28,000, 5 5 जा 25,000, 6 4 जा 24, 24,000, 7 3 जा 21 मीन्स 21,000, 8 2 जा 16 मीन्स 16,000, 9 1 जा 9,000। अब हमें यहाँ पर इन सभी का टोटल करके यहाँ पर लिखना होगा। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का टोटल करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1,47,000, 1,47,000। अब हमें यहाँ पर मीन फाइंड करना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इक्वल टू 1,47,000 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू 30। 0 से 0 कैंसल, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 0 0 equal to 4,900 rupees. Therefore, the mean of monthly salary
is rupees 4,900 answer. Question number 5. In a basket there are 10 tomatoes. The weight of each of these tomatoes in grams is as follows. मतलब यहाँ पर हमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई है जो कि 10 टोमेटोज़ का वेट लिखा हुआ है जो कि ग्राम्स में है, तो हमें इनका मीडियन फाइंड करना होगा. सॉल्यूशन. गिवन डेटा in ascending order, यहाँ पे जो नंबर्स दिए हुए हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा. सबसे पहले हमारे पास वैल्यू है 50, 60, 65, 70, अगेन 70, 80, 85, 90 and 95, जो कि 2 टाइम्स है 95 तो 95. Therefore, number of observations n equal to 10, that is even number. ये even number है. Therefore, median is the average of middle two observations. अब यहाँ पर देखिए हमें जो नंबर्स गिवन है ये 10 नंबर्स हैं जो कि इवन है. तो इवन नंबर के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं n/2th टर्म एंड n/2 + 1th टर्म. तो हम इन सभी के लिए वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. तो यहाँ पर n/2 मीन्स 10/2th टर्म एंड n means 10/2 plus 1th term. Therefore 2 1s are 2, 2 5s are 10 means 5th term and 2 1s are 2, 2 5s are 10. तो 5 plus 1 equal to 6, 6th term. तो हमें मिडिल टर्म मिल गई है 5th and 6th. Here 5th and 6th numbers are in the middle position. Therefore, median equal to 5th and 6th टर्म. तो 1 2 3 4 5 and 6. तो 5th और 6th में कौन सी वैल्यू 70 and 80. तो हम यहाँ पर लिखेंगे 70 + 80 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिखा है मीडियन इज द एवरेज ऑफ मिडिल टू ऑब्जर्वेशंस. तो मिडिल ऑब्जर्वेशन कौन से 5 and 6 पोजीशन पे कौन सी 70 and 80. तो 70 and 80 का एवरेज हमें निकालना है. तो इनको दोनों को 8 करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीडियन आ जाएगा 70 + 80 इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 2. 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 5s are 10 तो इक्वल टू 75. Therefore, median equal to 75. Therefore, the median of the weight of tomatoes is 75 grams. Answer. Question number 6. A hockey player has scored following number of goals in 9 matches: 5 4 0 2 2 4 4 3 3.
यहाँ पर हमें गोल्स दिए हुए हैं जो कि हॉकी प्लेयर्स के स्कोर हैं 9 मैचेस के। तो हमें ये जो स्कोर्स दिया हुआ है इन स्कोर्स का मीन, मीडियन एंड मोड फाइंड करना होगा। सॉल्यूशन, अब सबसे पहले हमें फाइंड करना है मीन। तो फर्स्ट मीन के लिए हमें नंबर से गिवन है, गिवन डेटा 5 4 0 2 2 4 4 3 3। Total number of observations equal to 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 नंबर्स है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर मीन फाइंड करना है, तो मीन का फॉर्मूला लगाना होगा। देयरफॉर मीन इक्वल टू द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस in the data divided by total number of observations इक्वल टू द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इन द डेटा। मतलब यहाँ पर हमें जो डेटा गिवन है उसका सम करके लिखना होगा। तो हमें कौन से नंबर्स गिवन है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 5 + 4 + 0, 5 + 4 + 0 + 2 + 2 4 + 4, 2 + 2 4 + 4 + 3 + 3 divided by total number of observations 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 नंबर है। इक्वल टू अब हमें यहाँ पर इन सभी का टोटल करके लिखना होगा। तो इनका टोटल कितना आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 9, 9 1 9, 9 3 27 इक्वल टू 3। देयरफॉर मीन इक्वल टू 3। देयरफॉर द मीन of the given data is 3। सेकेंड में हमें फाइंड करना है मीडियन। मीडियन के लिए हमें डेटा तो यही गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन डेटा उसे हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो गिवन डेटा इन ascending order 0 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 and 5। Therefore number of observation n equal to 9, दैट इज़ ओड नंबर। ये ओड नंबर है तो यहाँ पर हमें ओड नंबर का फॉर्मूला लगाना होगा। n + 1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म इक्वल टू n + 1 मीन्स 9 + 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 9 + 1 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2 2 5 10 इक्वल टू 5th टर्म। तो हमारी मिडिल टर्म कौन सी आ गई है, 5th टर्म। हियर द 5th टर्म is at the middle position which is 1 2 3 4 5। फिफ्थ टर्म कौन सी है हमारी 3, which is 3। therefore the median of the given data is 3। आंसर। अब थर्ड
थर्ड में हमें फाइंड करना है मोड। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, जो गिवन डेटा इसे अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पर हम अरेंज कर चुके हैं तो वैसे के वैसे हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं 3 3 4 4 4 5। अब मोड का मतलब होता है कि वो नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, मतलब जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वो होता है मोड। तो यहाँ पर 4 सबसे ज़्यादा बार आया है क्योंकि 4 की फ्रीक्वेंसी 3 है, यहाँ पर 3 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 2 की फ्रीक्वेंसी भी 2 है और 5 की फ्रीक्वेंसी 1 है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी, 4 की, तो मोड हो जाएगा 4। हेयर द ऑब्जर्वेशंस repeated maximum number of times equal to 4. Therefore, the mode of the given data is 4. Question number 7. The calculated mean of 50 observations was 50. It was later discovered that observation 19 was recorded by mistake as 91. What was the correct mean? यहाँ पर हमने 50 ऑब्जर्वेशंस का मीन निकाला था, उसका आंसर आया था 80। लेकिन बाद में हमने ऑब्जर्व किया कि 19 की जगह हमने 91 लिखा। जो हमने रिकॉर्ड लिया है उसमें 19 की जगह हमने 91 लिख लिया, जिससे हमारा मीन इनकरेक्ट आया। तो मीन में क्या करेक्ट मीन है वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। मिस्टेक सुधार के जो करेक्ट मीन है वो करेक्ट मीन हमें यहाँ पर फाइंड करना है। सॉल्यूशन, here mean 80, number of observation equal to 50, therefore mean equal to the sum of all observations। टोटल 50 और नंबर्स हैं तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना हो जाएगा 50 और मीन कितना फाइंड किया हमने 80। मतलब 50 ऑब्जर्वेशंस हमें दिया था, उसका मीन हमने फाइंड किया था 80, लेकिन मिस्टेक से 19 की जगह क्या लिखा गया था 91। तो हमें यहाँ पर अब करेक्ट मीन फाइंड करना होगा। द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। Total number of observations. Therefore, the sum of all observations equal to mean into total number of observation। अब यहाँ पे देखिए हमने मीन का फॉर्मूला तो लगाया था, लेकिन हमें द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस गिवन नहीं है, ये हमें पहले फाइंड करना होगा। हमें जबकि यहाँ पर मीन दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया है 50। तो मतलब यहाँ पर हमें ये फाइंड करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको एक साइड लिख कर इसका मल्टीप्लाई मीन में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इक्वल टू मीन इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम इक्वल टू के इस सेट लेकर चले गए तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मीन इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा किसके, द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन के। अब बस यहाँ पर हमें वैल्यू रखना है। मीन मतलब 80 एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स 50। मीन्स यहाँ पर हमें लिखना होगा 80 इंटू 50 फॉर द सम ऑफ 50 observations equal to 80 into 50।
equal to 8 5 जा 40 means 4000. One of the observation was 19. However, by mistake it was recorded as 91. मतलब रिकॉर्ड में 19 था, हमने मिस्टेक से 91 रिकॉर्ड कर लिया. Therefore, sum of observations after correction equal to sum of 50 observations plus correct observations minus incorrect observations. मतलब यहाँ पर हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस आफ्टर करेक्शन फाइंड करना है. तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस फाइंड किया है. उसमें हम करेक्ट ऑब्जर्वेशंस को ऐड करेंगे और इनकरेक्ट को माइनस करेंगे. मीन्स जो हमारा करेक्ट था 19 इसे ऐड करेंगे और 91 को माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल में हमने 91 को ऐड करा है और 19 को ऐड नहीं करा है. तो हम क्या करेंगे, 90 टोटल में से 91 को हटा देंगे, 19 ऐड कर देंगे, जिससे हमें टोटल नंबर मिल जाएगा. इक्वल टू सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन कितना है 50 प्लस करेक्ट ऑब्जर्वेशन 19 था, 19 की जगह हमने लिखा था 91, तो 91 हम माइनस कर देंगे. अब सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 4000. तो हमने यहाँ पे लिखा 4000 प्लस 19 माइनस 91, तो इसका आंसर आ जाएगा 3928. अब हमें फाइंड करना है करेक्टेड मीन. करेक्टेड मीन इक्वल टू सम ऑफ observations after correction divided by total number of observations. Total number of observations equal to sum of observations after correction. हमने अभी फाइंड किया है कितना 3928 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इक्वल टू 50 इक्वल टू. अब हमें इसे सॉल्व करना होगा. सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 78.56. देयरफॉर द करेक्टेड मीन इज 78.56 आंसर. Thank you. Please subscribe my channel and press the bell icon.